Good morning. Today I'm here in a section where marine environment was prevalent before the Himalayas were originated and India and China were separated by a sea. Why I call it a marine environment? That is what I'm going to show you. We are finding very good samples of bivalves here in the rocks, which shows that the environment at the time of deposition was marine. So I'm going to take out one or two specimens here from the rocks and try to see if I can give a live demonstration of how extraction of fossils is done. So this is the rocks. This is a marine sequence. Why I call it a marine sequence? This is a normal rock to anybody, but why we call it a marine sequence or a rocks deposited in the marine environment? So for the simple reason, now you see, if you examine these rocks closely, now I'm going to show you something. You see, this is a shell. I don't know whether I can zoom it. So this is a shell. When I will break it, it will be broken from this crack also. So we have to be very careful. We take out this. Now it becomes more clearer. This is the same. So here it is embedded here. Try to take it out. The rock is very fragile. And try to take it out like this. Very fragile. Can't use a hammer or a chisel. Now you see this. This is the shell. It's complete. You can see the striations of the shell in the rocks, but this is a fracture crack which has developed, and when we try to break it, this may be beautiful preserved specimen we are getting here. Can you see this? So that is why finding any organism in the rocks will definitely tell the environment of that rock in which it was deposited. So here we are seeing this marine fossil specimen. So I'll try to take it out, but I don't think I'll be able to preserve the complete specimen. So finding a bivalve in these rocks show that it was a marine environment. So this is how from a single fossil specimen we can make out the environment of that rocks in which it was deposited. So very, very clear example. So in complete section it is like this, but once, and it is very difficult to find out anything, but once you are focused, you just see this entire specimen of a bivalve here. So very clear, very fragile. I don't want to break it. So because if I try to take it out, now it becomes more clearer.
So here there is another one at the top, but again it is broken. So this is not a single isolated fossil here, which we are getting to see this one. Now this is very clear, the striations are very clear of the bivalve, though it is broken, but the striations are very clear. Here, so this is entire thick sequence of marine environment in which these bivalves were deposited, and from this we can conclude very clearly that the rocks were deposited in a marine environment. Since this was deposited in a marine environment, it clearly, what does it geologically imply? This implies that if we are getting this environment here, then the Himalayas were not born. Why Himalayas were not born? Because if we are getting a marine environment, then Arabian Sea and Bay of Bengal were connected. And there was a sea. That sea was known as Tethys Sea. And that Tethys Sea was getting some more interesting specimens here. You see this one? Wow, this is a complete one now. You can see this one. So try to take some specimens and preserve it in the museum which we are trying to create, but taking them out is a task in itself, and preserving them in the museum is another task. So very interesting specimens we are getting here. And in the morning, oh wow, try to figure out some more specimens here. So preservation of fossils is, so any other fragmented remains we are getting here. This one here, you see. So sometimes fossilization is a difficult process, fossil finding is a difficult process, fossil taking out is a difficult process, and then fossil preservation is a difficult process, because millions and millions of fossils might have been preserved, but how many of these fossils we are able to see is just a matter of time, you know. So now I would like to speak in Hindi. आज हम ऐसे ही पत्थरों में हैं जहाँ पे हम उनको देख के तो ये पत्थर ही लगते हैं, सारी चट्टानें लगती हैं, लेकिन इनको अगर हम क्लियरली देखें और क्लोजली देखें तो इनमें कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे ये डिपॉजिट हुई होती है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सी एनवायरनमेंट में डिपॉजिट हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हो जाता है। और हम कुछ भी बोलते रहें, लेकिन जब तक इसके अंदर हमारे को कुछ ऐसी चीज़ ना मिल जाए जो कंक्लूसिवली इसके बारे में बता सके, तब तक इस एनवायरनमेंट के बारे में हम इतना ज़्यादा रॉक्स को देख के भी बता सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम एक देख पा रहे हैं कि ये देखिए आप, ये एक इन पत्थरों के बीच में, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा कि ये एक शेल है, पूरे का पूरा शेल यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। काफ़ी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है और फ्रेजाइल रॉक्स हैं। और अगर ये शेल यहाँ पे मिल रहा है और ये बायोवेल्व का शेल है, तो बायोवेल्व्स कहाँ पे होते हैं? ये समुंदर में होते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये रॉक्स जो हैं ये समुंदर में डिपॉजिट हुए हैं, और जहाँ पे भी ये रॉक्स ऐसे मिलेंगे हमारे को, तो वो सारी की सारी समुंदर की एनवायरनमेंट थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सिंपल से एक फॉसिल से आप कैसे एनवायरनमेंट को बता सकते हैं, और कैसे हिमालयज़, अगर ये हिमालयज़ में आपको हमारे को मिल रहे हैं, तो हिमालयज़ उस टाइम हिमालयज़ नहीं थे,
वो समुंदर में थे और ये ड्रिफ्ट होके जब इंडिया कोलाइड की है तो सारे का सारा ये अपलिफ्ट हुआ है समंदर, तो उसके अवशेष यहाँ पे इस एक सिंगल स्पेसिमेन से हम बता सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है फॉसिल का मिलना और उसकी रॉक्स की एकदम एनवायरनमेंट बताना। तो इस तरह से हम एक फॉसिल को देख के उसकी रॉक्स की एनवायरनमेंट को बता सकते हैं और उस एनवायरनमेंट फिर इसको डेट करते हैं। तो अगर डेट इसकी जो भी आती है उसके कारण हम ये बता सकते हैं कि ये समुंदर था। लेकिन अब क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, तो हिमालयस की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इस समय जब ये डिपॉजिट हो रहे थे उस समय हिमालयस की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है। अब अगर हम इसको डेट कर लें इस रॉक्स के स्पेसिमेन को, तो हम ये बता सकते हैं कि उस समय के बाद ही हिमालयस की उत्पत्ति हुई है। अभी एक और ये देखिए, ये स्पेसिमेन है, ये देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी स्ट्राइशंस कितनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। ये बाइवल्स के शेल हैं। और भी यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिमेंस यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे रॉक्स हैं और ऐसे देखने में कुछ नहीं होता, लेकिन इसको केयरफुली हम अगर ऑब्जर्व करें इन रॉक्स को तो हमारे को कुछ ना कुछ अच्छे स्पेसिमेंस यहाँ पे इनके मिल जाते हैं। एक नहीं है, काफ़ी सारे स्पेसिमेंस हैं यहाँ पे। और अगर इसको ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे मिले थे हमारे को। अभी और भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे को ऐसे बाइवल्व्स के और भी स्पेसिमेंस मिलने चाहिए। इसमें बहुत सारे जीव जंतु होंगे, लेकिन सारे के सारे एक ही बात को बताएंगे कि यहाँ पे क्या था, क्या मेरीन एनवायरनमेंट थी। और वो मेरीन एनवायरनमेंट क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे हमारे को बाइवल्व्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को मिला तो था एक। अब इसकी क्या चीज़ होती है कि पत्थरों को देखते रहो देखते रहो देखते रहो और फिर आपको अपनी आइज़ ट्यून करने पड़ती हैं इसमें। और ये देखिए एक स्पेसिमेन और मिल गया यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा स्पेसिमेन है और इसको छेड़ा मैंने, बड़ा फ्रेजाइल है, रॉक्स बहुत फ्रेजाइल हैं। जैसे इसको छेड़ते हैं हम तो ये टूट जाते हैं, नहीं टूट। और इसकी ये देखिए एक और, ये बिल्कुल ठीक, ये देखिए ये भी एक बायोवेल है। तो इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने से आप पूरी की पूरी उस जगह की एनवायरनमेंट को, पेलियो एनवायरनमेंट उसको बोलते हैं, पेलियो मतलब पुरानी एनवायरनमेंट को बता सकते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। फॉसिल्स बहुत रेयरली प्रिजर्व्ड होते हैं और रेयरली प्रिजर्व्ड होने के बावजूद इनका मिलना वो एक और अकस्मात बात होती है। और मिलने के बाद इनको यहाँ से निकालना वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि ये फ्रेजाइल हैं। अगर मैं इनको निकालूंगा ये सब टूट जाएंगे। पर फिर भी अगर हम कुछ निकाल के ले जाते हैं, फिर लैब में प्रिजर्व करना और लैब में प्रिजर्व करके कैसे एक कॉमन आदमी को हम दिखा सकें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके, क्योंकि जब हम स्पेसिमेन यहाँ से निकाल के ले जाएंगे और वहाँ पे रखेंगे किसी भी म्यूज़ियम में, तो वो सारे का सारा या तो अपनी कलेक्शन में रख देते हैं या म्यूज़ियम में रखते हैं। तो वो सिर्फ उसके लिए एक पत्थर होता है, लेकिन वो पत्थर एक एनवायरनमेंट को बताता है, जिसके कारण हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जान सकते हैं अपने पुरानी एनवायरनमेंट के बारे में। और अगर एक बार हम ये सक्षम हो जाते हैं कि कैसी हमारी एनवायरनमेंट थी, तो उससे हम लेसन्स ले सकते हैं कि कैसे अर्थ एक डायनामिक चीज़ है, कैसे कैसे ये परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। और हम इतना ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए कि हम इस एनवायरनमेंट में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, इसमें कैसे हम इसका इस्तेमाल करें, इसका दोहन करें, इसका शोषण ना करें। और जितना ज़्यादा अच्छी तरह से इसको हम इंजॉय कर सकते हैं उतना करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम इसको पोल्यूशन और इसके साथ जोड़ देते हैं तो अपनी, मतलब ये तो एक लाइफ साइकिल है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे हमें इसको संयोग के रखना है। और बेस्ट चीज़ है अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिजर्व कर सकें, जियो हेरिटेज साइट्स बना सकें और लोगों को इंटरेस्ट करा सकें, तो एक बहुत बड़ी बात होगी ये। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखते हैं कल क्या होता है और एक अच्छी सी लोकेशन में मिल जाए। और अगर भगवान अच्छा हुआ, मतलब अच्छी तरह से कोई एक दे सके, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ यहाँ पे जाने से पहले एक
फॉसिल को निकालने की यहाँ से। अब ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्पेसिमेन मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटे छोटे से मिल रहे हैं, तोड़ेंगे यहाँ से, और अगर और भी चीज़ हुई तो हो सकता है बड़े बड़े भी मिलें, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। अब मेन चीज़ तो है, अब मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको निकालने की। पर मेरे को लग रहा है कि मैं निकालूंगा इसको ये टूट ना जाए। तो ये एक बहुत ही मस्त चीज़ होने वाली है यहाँ पे। अगर ये टूट गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो ये बहुत धीरे धीरे से मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसकी आसपास की जगह खाली कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पत्थर को तोड़ने के लिए मेरे को कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, हथौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ रही। धीरे धीरे से मैंने इसके आसपास की जगह खाली कर ली। अब देखता हूँ ये निकल पाता है कि नहीं। अभी भी ये काफ़ी इंटैक्ट है। थोड़ा सा यहाँ वाला फ्रेजाइल पोर्शन है, ये निकल जाएगा शायद। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब इसको निकालना है। अगर ये निकालने में पूरा का पूरा और ये टूट गया नहीं यार, शायद बच गया। तो इस तरह से ये देखिए पूरे का पूरा स्पेसिमेन मैंने ये यहाँ पे रखा, और इसका जो काउंटर पार्ट था वो ये है, तो मैंने ये यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया। तो ये पूरे का पूरा शेल फिर से बन गया। तो एक शेल हमने बचा लिया, और इसको हम प्रिजर्व करेंगे और लेबोरेटरी में अपने म्यूज़ियम में लेके जाएंगे।